Uh, so first of all, I would like to thank you to all of you who have shown interest to start with us this new journey of completing the whole world geography. As you all know, we have just started this new series of completing the world geography through new learning techniques, through unique methodology by which we can complete the entire syllabus as well as we can learn all those things. So yeah, uh, I would just like to thank you all once again. So yeah, welcome all of you. So without any further ado, let us hop into our video. So today's chapter is about latitudes and longitudes. As I have already told you what I am going to teach you about latitudes and what I am going to teach you about longitude. My basic purpose is you should understand each and everything. Whenever someone says latitude, you must be totally familiar with everything which can be asked by in that topic. Okay, so let us start with latitudes. What is latitude? What do you understand when you hear the word latitude? So latitude are those imaginary line which join the points, okay, which join the points which has the same angular distance with respect to the center of earth. Okay, I'll simplify this to you. Suppose someone is standing at this point and someone is standing at this point. Okay, this here 30 degree here and 30 degree here. So if I ask you to tell me the angular distance of that point from center of earth, you will say okay, you will draw a perpendicular line this way and then you will draw this line this way, and you will say yeah, this 30 degrees is the angular distance. And someone is standing here, the answer will be same 30 degree but in this direction. Okay, and if someone is standing here, the answer will be same 30 degree but in south direction. Okay, with respect to this center. Now if I ask you to join all those points in the northern part, like in the northern part which has the same angular distance, you will get a circle like this. So that line will be known as your latitude. Okay, so latitude basically tells you the angular distance of a point with respect to the center of earth. Got it? And if someone says longitude, so suppose this is your reference line, this is your reference line, and someone is located at suppose here or this point, so it also tells you the angular distance, but this angular distance is with respect to this line. Okay, this line sent a line which passes through the center of earth, but in the case of latitude, this angular distance is with respect to this particular point at the center of earth. Okay, got it? So these are your latitudes and longitude. Okay, so now let us move forward. Key, what is latitude? It is latitude of a place describes the angular position of a place with respect to the center of earth. So tell me one thing, what will be the maximum angle a point can make with respect to center of earth? Maximum angle a point can make with respect to center of earth. If you notice carefully, okay, sorry, I changed the slide. If you notice carefully, I can be present here. When I am present here, my angle will be 0. If I move slightly northward, my angle will be 1 degree. Similarly, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree. In this manner, if I'll keep moving, at maximum I can reach this point. इसके ऊपर तो जा नहीं सकता. So this point is located at 90 degree. Therefore, the maximum angle और मैक्सिमम लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन बी 90 डिग्री. 90 डिग्री से ज़्यादा किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड नहीं हो सकता. तो समवन, इफ समवन आस्क यू, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स आर पॉसिबल, 91 डिग्री नॉर्थ, 92 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ या सम 90 डिग्री ईस्ट. तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ या साउथ के टर्म्स में ही डिफाइन होंगे. तो आंसर और हमेशा 90 से नीचे ही होंगे, 0 से 90 के बीच में. तो ऑब्वियसली 90 डिग्री नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? उसके बाद देखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं. अब कोई तुमसे ये पूछ सकता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स विच आर पॉसिबल. तो अभी मैंने तुमको बताया कि एक एक डिग्री पे तुमने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं सारी. ये 0 डिग्री पे थी, फिर इसके ऊपर 1 डिग्री पे एक लाइन है, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, ऐसा 30 डिग्री पे है.
तो इस पैटर्न को अगर तुम फॉलो करोगे तो मैक्सिमम लैटिट्यूड कितने हो सकते हैं भाई? 90 तो हो जाएंगे इधर 0 से लेकर के 90 तक, 90 फिर हो जाएंगे साउथ डायरेक्शन में सिमिलरली। गॉट इट? तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 प्लस एक ये 0 डिग्री भी तो रहेगा ये वाला, तो टोटल 181 लैटिट्यूड हो जाएंगे। 1 2 से 90 इधर, 90 इधर और एक ये बीच वाला 0, तो टोटल 181 लैटिट्यूड पॉसिबल है। इस चीज़ को मार्क कर लेना अच्छे से कि टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं, 181, और मैक्सिमम लैटिट्यूड कहाँ तक जा सकता है? 90 डिग्री तक, उसके ऊपर नहीं जा सकता। गॉट इट? ओके। बाकी लैटिट्यूड की पोजीशन बताते कैसे हैं कि उसका एंगुलर डिस्टेंस बता दो, उसके बाद नॉर्थ या साउथ लगा दो। नॉर्थ साउथ कैसे लगाओगे? अगर इस सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर है तो नॉर्थ लगा देना, नीचे है तो साउथ आ जाएगा। गॉट इट? सिंपल। अगर यहाँ कहीं पे मान लो साउथ अमेरिका में, तो ऑब्वियसली उसका लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड जो होगा वो साउथ में पड़ेगा, अगर ऊपर है तो नॉर्थ में पड़ेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज ऑलवेज सेम एंड इट इज़ अराउंड 111 किलोमीटर। समझो इस चीज़ को ढंग से। सपोज दिस इज योर इक्वेटर वाली लाइन, गॉट इट, एंड इसके जस्ट ऊपर 1 डिग्री वाली लाइन है, उसके ऊपर 2 डिग्री वाली लाइन होगी, तो 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा 111 किलोमीटर रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। पर हमेशा चाहे तुम यहाँ पे 89 और 90 डिग्री के बीच का डिस्टेंस देखोगे तब भी सेम रहेगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज सेम। अच्छा, ये जो लाइन दिख रही है ना तुमको, ये वर्टिकल वाली, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो क्या ये चीज़ लॉन्गिट्यूड के केस में सही है? अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इक्वेटर पे इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में देखो लाइन का डिफरेंस कितना है, पर यहीं पोल पे अगर तुम जाओगे तो एकदम 0 हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड पोल पे कन्वर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कभी सेम नहीं होता और लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अब ये बताओ कि क्या लैटिट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है या नहीं? आर ऑल द लैटिट्यूड्स ऑफ सेम लेंथ? yes, all the latitudes are not of same length, याद रखना, they are never of same length। क्यों? खुद से ध्यान दो, अगर इक्वेटर की बात करोगे तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है 2πr, क्योंकि बिल्कुल और r मान लो अर्थ का रेडियस। पर जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ ऊपर, सर्कल हमेशा टॉप पॉइंट पे एकदम पतला होता है, नीचे मोटा होता है ना? तो यहाँ का पैरामीटर हमेशा ज़्यादा आएगा ऊपर वालों के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे लैटिट्यूड की लेंथ छोटी होती जाएगी। तो एकदम जो टॉप पॉइंट नॉर्थ पोल होता है वो शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड होता है और इक्वेटर हमेशा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ बट यू कैन ऑलवेज स्लो डाउन द वीडियो। गॉट इट? I don't want to make this video of half an hour or something. So next thing which I want to focus is the climatic condition. See, latitudinal position of a place plays a very important role in deciding its climatic condition. Why? Because हमारी अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। और सनलाइट कैसे हम तक आती है, कितनी सनलाइट हम तक आएगी, डिपेंड करता है हमारा लैटिट्यूड क्या है। सपोज दिस डॉट को आप मान लो इस सन है, सो द पॉइंट विच आर डायरेक्टली ओवरहेड लाइक दीज पॉइंट्स विल ऑब्वियसली रिसीव मोर सनलाइट देन प्लेसेस लाइक दिस or the places like this. So obviously these will be warmer places compared to the other places. So इसीलिए क्या होगा कि इन सारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं वो टोटली डिपेंड होती हैं किस चीज़ पे? लैटिट्यूडनल पोजीशन पे। अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशन, द वेजिटेशन दैट इज फ्लोरा एंड फौना, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय दिस सनलाइट। अब एक बात बताओ, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे पोलर बियर तो नहीं होगा ना कभी भी? हाँ, पोलर बियर के लिए सर्दी चाहिए। तो अब पोलर, अब कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी एक मान लो देवदार हो गया या कोई भी ऐसा पेड़ हो गया जो कि कॉनिफेरस जो वेजिटेशन है, वो तुमको ट्रॉपिक्स में थोड़ी मिलेगी, ऑब्वियसली टेम्परेट या माउंटेन इलाकों में मिलेगी। गॉट इट? सो द वेजिटेशन, द एनिमल लाइक द fauna and the climatic condition, everything depends on the latitudinal position. Somewhere this question was asked, does the latitudinal position of a place plays any role in the evolutionary process? Yes, obviously evolution में भी
रोल प्ले करेगा। क्यों? अब भाई जिस जगह पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ की जो भी वेजिटेशन होगी वो तो कोशिश करेगी ना अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो हीट को लेकर के टॉलरेंट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर यू नो प्लेसेस। लाइक ह्यूमंस में भी देख लो, जो ठंडे इलाकों के ह्यूमंस हैं, यूरोप के ह्यूमन और इंडिया के जो मतलब ह्यूमंस हैं, दोनों में कितना डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन काफ़ी अलग है। गॉट इट? नाउ उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारा 0 डिग्री वाला इक्वेटर है। गॉट इट? इसके जस्ट ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ। देन एट 66.5 डिग्री नॉर्थ वी विल फाइंड ए आर्कटिक सर्कल एंड देन एट टॉप विल फाइंड नॉर्थ पोल। गॉट इट? सो पैटर्न क्या है? इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 पे क्या है? आर्कटिक सर्कल एंड देन नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री। इन अ सिमिलर फैशन व्हेन यू मूव साउथवर्ड यू विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गॉट इट? उसके नीचे एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ, देन एट 90 डिग्री साउथ विल फाउंड साउथ पोल। गॉट इट? अब आई गेस काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी लैटिट्यूड में। और ये मैंने पहले पढ़ा दिया, 2 लैटिट्यूड्स आर नेवर इक्वल इन लेंथ। लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर होगा और शॉर्टेस्ट पोल होगा। मैं फिर से एक बारी फोकस कर रहा हूँ बात पे, ध्यान से सुनना। देखो, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, पर लैटिट्यूड्स की लेंथ वेरी करती रहती है। कितनी होती है? हर लैटिट्यूड अलग होगा लेंथ में। सबसे बड़ा इक्वेटर, सबसे छोटा पोल। गॉट इट? लॉन्गिट्यूड के केस में क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, सारे लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम होगी हमेशा, हर लॉन्गिट्यूड की लेंथ इक्वल ही होगी, इक्वल टू 2πr, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर r मान लो तो 2πr के इक्वल लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ होगी। पर हर बारी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, मिनिमम पोल पे होता है। ये चीज़ याद रख लेना अच्छे से। गॉट इट? फिर से लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर इज ऑलवेज फिक्स, बट द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड नॉट फिक्स। इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड इज फिक्स बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इज नॉट फिक्स्ड। गॉट इट? चलो ये पॉइंट आई गेस याद रहेगा तुम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट विल मूव फॉरवर्ड टू लॉन्गिट्यूड। होते क्या है लॉन्गिट्यूड? भाई देखो इस डायग्राम से समझो। सपोज दिस इज अर्थ। मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मेरे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइंस बताओ कितनी है। तुम कितनी लाइन बता सकते हो? एक ऐसे तुमने ड्रॉ करी, एक थोड़ी से साइड से ड्रॉ कर दोगे, एक और थोड़ी, एक और, ऐसे करके तुम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला 1-1 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर दो, ठीक है? तो यही लाइंस तुम्हारी लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। Got it? So longitude are those imaginary lines which joins the 2 poles of the earth. Got it? And divides the earth into 2 equal halves. याद रख लेना अच्छे से, ठीक? Longitude are those lines which joins the 2 poles of the earth and divides the earth into 2 equal halves. Got it? अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, मैं तुमसे कहता हूँ 1-1 डिग्री के एंगल पे काटते चले जा रहे हो, तो जब अर्थ के जस्ट ऑपोजिट एंड पे पहुँचोगे तो ऑब्वियसली तुम 180 डिग्री तक पहुँच गए होगे, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक आते आते, ऐसा समझ। और सिमिलर मैनर में तुम इधर से जाओगे तो भी 180 तक पहुँच जाओगे, ठीक? अगर तुम ऐसे जाते हो, जैसे यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे अभी ये 0 डिग्री है, अगर तुम ऐसे जाते हो तो कहूँगा 1 डिग्री ईस्ट आए, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 180 डिग्री ईस्ट तक जाओगे। और इधर से जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंच जाओगे। तो याद रखना हमेशा, ठीक है, कि टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 180, 180, 360 प्लस एक ये वाला लॉन्गिट्यूड, तो 361 लॉन्गिट्यूड होते हैं। हमेशा याद रखना 361। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे 0 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट एंड पे कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा? 180 डिग्री होगा। अगर नॉर्मल से भी मैथ लगा लो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री से ऐसे कर करके यहाँ तक आते आते 180 डिग्री पे आ जाओगे घूम के अर्थ तक। अब ये 180 डिग्री जब तुम पहुँच रहे हो तो 180 डिग्री ईस्ट भी यहाँ पे है, और अगर इधर से जाते तो 180 डिग्री वेस्ट भी वहीं पड़ता। तो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं, याद रख लेना हमेशा।
और उसी लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट को ही इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये भी चीज़ हमेशा अच्छे से याद रखना, ठीक। 3 चीज़ बताइए तुमको, क्या 3 चीज़? वेन वेन तो नहीं, मतलब जब तुम पीछे जाते हो तो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, बोथ लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम लॉन्गिट्यूड, गॉट इट? And that longitude is known as international date line. Once you crosses that line, the date will change but the time will not change. Got it? चलो वो सब तो अपन बाद में देखेंगे टाइम वाली चीज़ में, बस तुमको लॉन्गिट्यूड में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिकली ये है कि लॉन्गिट्यूड, ठीक। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच, दिस specially designated imaginary north-south line that passes through the geographic poles at Greenwich, London। देखो हुआ क्या था कि बोला गया कि अब तुम कैसे किसी चीज़ की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन डिटरमाइन करोगे, क्योंकि यार तुम इसको भी जीरो बोल सकते हो, इसको भी जीरो बोल सकते हो, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। सो दे हैव अग्रीड टू अ लाइन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच, कि हम उसको रेफरेंस लाइन बोलेंगे अपनी। सो द लाइन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच, सपोज हेयर इज ग्रीनविच, यहाँ लंदन में है ग्रीनविच, तो इस लाइन को बोल दिया गया प्राइम मेरिडियन है, दिस रेड वन, गॉट इट? तो अब इससे ईस्ट में जितनी चीज़ें पड़ती जाएंगी वो हो जाएंगी, मतलब उतने उतने डिग्री ईस्ट उसके लॉन्गिट्यूड में ऐड कर देना, और जितनी इससे वेस्ट जाओगे उतने वेस्ट 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 ऐड करते रहना। आ रहा है समझ? तो इस लाइन से ईस्ट वाली चीज़ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इस लाइन से वेस्ट वाले जगहों को वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। इंडिया की लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। सिमिलरली इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, इक्वेटर के नीचे तुम्हारा सदर्न हेमिस्फेयर होता है, गॉट इट? चलो ओके। Unlike the latitude which are circle, the meridian of longitude are semicircle that converges at pole। देखो ये मैंने तुमको ना पहले भी बताया ये चीज़ कि देखो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना वो सेमी सर्कल होते हैं। दरअसल ये 1 डिग्री ईस्ट जो है ये यहाँ से यहीं तक जा रहा है, उसके बाद पीछे जो है उसका नंबरिंग कुछ और कर दिया उन्होंने, गॉट इट? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री तक ही जा सकते हो ना तुम, फिर इधर से भी तो जा रहे हो 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर से गए थे और 180 डिग्री इधर से जा रहे हो और बीच में आकर के मिल जा रहे हो, इसीलिए तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट कॉमन हो रहे हैं। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड हमेशा सेमी सर्कल होते हैं, ऐसे आधे आधे, आधे इधर आधे उधर, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड दूसरी होगी, गॉट इट? चलो उसके बाद देखते हैं। फॉर कन्वीनियंस ऑफ नंबरिंग द meridian of longitude passing through the Greenwich has been adopted as prime meridian। We have already seen this thing। The longitude of a place is its angular distance east or west of the prime meridian। ये हम ऑलरेडी भी समझ चुके हैं। अब लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं ये भी बता दिया, 361 हो गया हमेशा। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड विच पहले ही पढ़ लिया हमने कि डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हमेशा सेम नहीं होगा। ये देखो इस पॉइंट पे 0 डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का अगर मैं तुम्हें डिफरेंस निकालने बोलूँ, इक्वेटर पे तुम कहोगे ज़्यादा है लेकिन पोल पे एकदम 0 हो जा रहा है, तो इसीलिए डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है। मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, मिनिमम पोल पे होता है। इक्वेटर पे मैक्सिमम कितना होगा 111 किलोमीटर और मिनिमम कितना हो जाता है 0 किलोमीटर, गॉट इट? बिकॉज पोल पे सारे ही एक पॉइंट आकर के एक साथ मिल जा रहे हैं। अच्छा कोई अगर तुमसे पूछ ले कि मेरे को पोल का लॉन्गिट्यूड बताओ तो क्या बताओगे? तो पोल का कोई लॉन्गिट्यूड नहीं होता, क्योंकि पोल पे सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, सारे ही लॉन्गिट्यूड वहाँ पे आकर के मिल जा रहे हैं, तो उसका कोई फिक्स लॉन्गिट्यूड नहीं होता। ये भी चीज़ याद रखना हमेशा। द वर्टिकल लाइन्स रनिंग नॉर्थ, ये तो वही चीज़ है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट द सेम। अच्छा इंडिया का एग्जांपल देखो, अगर तुमको मैप की थोड़ी क्लैरिटी होगी, तुमको पता है इंडिया ना, जैसे इसको अगर तुम इक्वेटर मान लो जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए तुम्हारे, तो इंडिया की पोजीशन लगभग इस जगह पे, यहाँ पे। तो अब हम एक चीज़ अगर देख, और इंडिया का पता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ का जो डिस्टेंस है वो भी 30 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी ईस्ट टू वेस्ट वो भी 30 डिग्री है। बट द लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ इज मोर एज कम्पेयर टू द ईस्ट एंड वेस्ट, जबकि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सेम है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर आते हो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स थोड़ा कम होता जाता है। इस वजह से इस पॉइंट पे जब तुम 30 डिग्री नापोगे तो बहुत कम डिस्टेंस आएगा, अगर यहाँ पे जाते ना तो और भी कम हो जाती चीज़ें। तो इस वजह से तुम्हारा जो है इंडिया जो है नॉर्थ और साउथ में लंबा है, ईस्ट और वेस्ट में छोटा है, जबकि
हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सेम है। इस पे भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। ओके, सो ये तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया। डिस्टेंस पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 361 होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड से क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, तो वैसे लॉन्गिट्यूड से क्या डिटरमाइन होता है? सो लॉन्गिट्यूड से ना टाइम डिटरमाइन होता है किसी भी प्लेस का। हाउ, हम लोग सोचेंगे कैसे, तो चलो फिर से डायग्राम पे आते हैं। कोई और डायग्राम देखते हैं, इस वाले डायग्राम को देखते हैं। देखो, हम सब जानते हैं अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ऐसे ऐसे, मतलब इस फैशन में। पहले अब मान लो ये सन है, तो ये पॉइंट ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ऐसे घूम के फिर वापस आएगा, ठीक है। पूरे रोटेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे, ठीक। 24 घंटे में अगर ये पॉइंट फिर से यहाँ जा रहा है तो कितने डिग्री घूमा है? यानी 360 डिग्री, क्योंकि पूरा घूम गई ना। और एक सर्कल कंप्लीट करने में कितने 360 डिग्री मारने होते हैं। तो अब आओ मैथ थोड़ी सी करते हैं। सी 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगे, ठीक। अब 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 24 इंटू 60 मिनट कवर करने में 360, मतलब इतने मिनट में 360 डिग्री कवर होता है मेरा। तो इस हिसाब से मैथ से अगर करूँगा तो 1 डिग्री को कवर होने में लगभग 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। यानी 1 डिग्री को कवर होने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 15 डिग्री कवर होने में कितने हो गए? 60 मिनट। यानी अर्थ को 1 घंटे में वो 15 डिग्री कवर कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज 2 प्लेसेस आर गिवन विच आर 30 डिग्रीज अपार्ट। प्लेस ए यहाँ पे मानो यहाँ पे प्लेस ए है, यहाँ पे प्लेस बी है, ठीक। इन दोनों के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 30 डिग्री है। तो मतलब होगा कि भैया दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होगा। मतलब सूरज यहाँ पे 2 घंटे पहले आया होगा ईस्ट में, और वेस्ट में 2 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अर्थ जो होती है ना वो वेस्ट टू ईस्ट चक्कर काटती है। यानी पहले, एक तो बार बार स्लाइड चेंज हो जा रही है, पहले ये पॉइंट्स आएंगे, फिर इस पॉइंट पे सूरज आएगा। तो जो जगह ईस्ट में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी वहाँ सूरज निकलेगा, यानी वो 2 घंटे आगे होगा कंपेरेटिव का, एज कम्पेयर टू दी अदर प्लेस विच इज़ 30 डिग्रीज वेस्टवर्ड। गॉट इट? लर्न कैसे रखना है? हमेशा याद रखना भाई, देखो ईस्ट हमेशा ही आगे रहेगा वेस्ट से, तो ईस्ट अहेड। अच्छा, जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं तुमको बोलता हूँ प्लेस ए है विच इज़ लोकेटेड एट 30 डिग्री ईस्ट, ठीक। और प्लेस बी है जो कि लोकेटेड है 60 डिग्री ईस्ट। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 30 डिग्री का। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ भाई कि कौन सा, अगर जो 30 डिग्री ईस्ट पे जो प्लेस है वहाँ पे दिन के 2 बज रहे हैं, तो बी पे कितने बज रहे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे 30 डिग्री ईस्ट में है, और तो उसमें ऐड कर देना टाइम, क्योंकि ईस्ट जितनी जगह होंगी उसमें ऐड होगा टाइम। कितना ऐड होगा? 30 डिग्री है तो 2 घंटे ऐड हो जाएंगे। तो अगर अभी यहाँ 2 बज रहे हैं तो वहाँ पे 4 बज रहे होंगे सुबह के। गॉट इट? तो इसी तरीके से निकालोगे। वेस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना कि अब 0 डिग्री लाइन को एग्जांपल लो कि 0 डिग्री पे अगर मान लो सुबह के 2 बजे हैं और तुमसे पूछ लिया मैंने 30 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, तो वेस्ट में मैंने तुमको बोला कि पीछे चलते जाओगे। तो अगर यहाँ सुबह 0 डिग्री पे सुबह के 2 बजे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे 12 बज रहे होंगे रात के, यानी 2 घंटे पीछे चले जाओ। यानी हर 15 डिग्री पे तुम 1-1 घंटे पीछे जाया करो, 30 डिग्री पे 2 घंटे पीछे चले जाओगे। मैंने वही एक्सप्लेन कर रखा है। 2 places are given and time at 1 place is known, then the time difference can be calculated by multiplying 4 by the difference in their longitudinal difference. Now the eastward place will be ahead of the western place by this margin. Got it? अच्छा चलो, एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो इस टॉपिक पे बचती है वो है ग्रेट सर्कल्स। क्या होते हैं? तो देखो यार, ग्रेट सर्कल वो सर्कल होते हैं जो कि अर्थ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर इस सर्कल की बात करूँ मैं, अगर मैं तुमको बोलूँ भाई नींबू को काटो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली काटो और 2 इक्वल पार्ट्स हों, तो सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा होगा जो कर पाएगा अगर तुम नींबू को एकदम बीच में से काट दोगे तभी। पर अगर मैं कहूँगा कि चाकू ऐसे मारो वर्टिकली और उसको इक्वल पार्ट्स में काटो, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो वो सर्कल जो कि अर्थ को टोटल इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करें उनको बोला जाता है ग्रेड सर्कल। तो हमारे पास कितने ग्रेड सर्कल हैं? बहुत सारे ग्रेड सर्कल हैं, पर लैटिट्यूड कितने होते हैं ग्रेड सर्कल? सिर्फ एक। ये जो इक्वेटर है सिर्फ यही है जो कि ग्रेड सर्कल है, बाकी और कोई भी लैटिट्यूड ग्रेड सर्कल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाओगे तो छोटे होते जाएंगे ना। ये देखो दो पार्ट्स, तो अब इस सर्कल की बात करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल थोड़ी है, नहीं है। तो ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है कि सिर्फ एक लैटिट्यूड ग्रेड सर्कल होता है जो है इक्वेटर। पर लॉन्गिट्यूड के केस में भाई एवरी लॉन्गिट्यूड इज अ ग्रेड सर्कल। क्यों? देखो ये वाला लॉन्गिट्यूड, देखो ये भी दो इक्वल में हिस्सों में बांट रहा है। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, और ये वाला लॉन्गिट्यूड ये भी बांट रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक लॉन्गिट्यूड ऐसे ड्रॉ कर दूंगा वो भी बांटेगा, एक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा वो भी बांटेगा। बट हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लॉन्गिट्यूड, ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड सेम नहीं होते, इनकी नंबरिंग अलग होती है। अगर ये 180 डिग्री ईस्ट है तो ये 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। बट क्या कहते हैं, तो इसलिए हम इसको सेमी ग्रेड सर्कल भी बोल सकते हैं, आधा ग्रेड सर्कल। बट अगर आप इन जनरल पूछो तो हाँ, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेड सर्कल, बट सिर्फ लैटिट्यूड में सिर्फ एक इक्वेटर ही होता है जो कि ग्रेड सर्कल है। ओके, पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज ग्रेड सर्कल? सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स आर नोन एज ग्रेड सर्कल। फॉर एग्जांपल इक्वेटर। And are longitudes great circle? Yes, all the longitudes are great circle. To be exact, they are semi-great circle because they divide the earth into two parts. Note क्या है यहाँ पे? Only one latitude, that is equator, is a great circle. Got it? So I have tried to cover each and every aspect of latitude and longitude chapter. जितना ज़्यादा हो सकता उतना मैंने कवर किया है। बस हाँ, इसके previous year questions रह गए and that we will see in the upcoming video. So इसमें I hope everything is clear, and if anything is not clear you can comment down and I'll ask you, please share this video as much as you can, है ना, so that others can also know कि we are, अभी हमने just start किया ज्योग्राफी के लेक्चर की सीरीज़ को, तो जितने जल्दी people will join it, the more beneficial it will be for all of them and for us also. So yeah, that's all from my side. Thanks a lot. Thanks again, man. Thanks a lot.